Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. And class, please do the work on time. I request you. Now it's time to do the modern periodic table. In the previous video, we have done the topic that is periodic classification of element, in which we have discussed the three tables, that is Dominant Triad, Newland Law of Octave, and the Mendeleev one. But all have some of the drawbacks. So it's time for the table that is being accepted over all over the universe. That is a modern periodic table. Now, modern periodic table has some law. Like in Mendeleev, you have studied about that the Mendeleev periodic table is based on the chemical properties on the increasing atomic mass. Okay, but in modern periodic table we have the periodic function of the atomic numbers. Basically in modern periodic table it works on the atomic number. like atomic number increase करेंगे तो उनके में कुछ वेरिएशंस आएंगी. नाउ अब ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आपका आउटर शेल इंक्रीज करता है एंड आउटर शेल इंक्रीज करने से उनकी कन्फिग्रेशन में कुछ चेंजेस आते हैं. ओके now the next one is, this is our modern periodic table. See, this is our modern periodic table. You can see we have hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. Now in this modern periodic table I'll explain what are the different concepts which have been given over here. Now this like in Mendeleev you must have learned about that this Mendeleev has discovered groups and periods. So modern periodic table has some of the concepts like groups and periods. Same, there we have 18 groups like in the Mendeleev periodic table. Same. Now Mendeleev has made 8 groups and then 7 periods. Same in the modern periodic table we have 18 groups. That is group 1. This is your group 1. This is your group 2. Okay. Now this is your group 13, 14, 15, 16, 17 and then 18. And the in between we have group 3 to 10. Okay. So this is your group distribution, and now this is your period 1, period 2, period 3, period 4, period 5, period 6, and then we have period 7. So this is what the modern periodic table is based on. That is, it has 18 groups and 7 periods. Okay. Now, so यही यहाँ पे बताया गया है, elements present in the same period have the same number of shells which is equal to the period number. Means जितना पीरियड नंबर होगा उतने ही उसमें सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगे. मीन्स सेम पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ शेल्स विच इज इक्वल टू द पीरियड नंबर. फॉर एग्जाम्पल, सी ओवर हेयर, वैसा कर सो कहाँ गया ये रहा. Now you can see, if I talk about magnesium, it has an atomic number 12 and the period is 3. Okay. So if I talk about sodium, the sodium is also in the same period, that is 3. So अगर सेम पीरियड में एलिमेंट्स होंगे तो उनका पीरियड नंबर सेम होगा, सेम नंबर ऑफ शेल्स आएंगे. नाउ व्हाट इन बाय नंबर ऑफ शेल्स? दैट मीन्स इफ आई टॉक अबाउट सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. फाइन. तो अगर मैंने 11 की बात की तो फर्स्ट शेल में, सी दिस इज योर फर्स्ट शेल के, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. देन नेक्स्ट यू हैव एल शेल, यहाँ पे आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. एंड देन यू हैव नेक्स्ट शेल दैट कंटेन्स योर अनदर 1 इलेक्ट्रॉन. Okay, I hope you must be remembering what is electronic configuration. Now I'll show you what it is. Now on this blank sheet I'll tell you what it means. सेम एटॉमिक नंबर में सेम पीरियड में सेम शेल्स कैसे आएंगे. नाउ यहाँ पे क्लियरली देखते हैं, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है ग्लास. ओके. देन अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या था? 2, 8, 1.
आपने के एल एम एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, एल एंड देन एम, ओके, आपने यहाँ पे 1 आ गया। नाउ हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, ये आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला पार्ट, देन यू हैव के शेल जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आते थे, एक यहाँ एंड देन सेकेंड वन इज ओवर हेयर। नाउ नेक्स्ट इज एल शेल जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आते थे, फाइन। नेक्स्ट यू हैव एम शेल जहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता था, फाइन। अब अगर मैंने मैग्नीशियम की बात की थी, इफ़ आई टॉक अबाउट मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम में क्या था, एटॉमिक नंबर 12 था, एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 8 एंड देन 2, दैट इज के एल एंड एम, ओके। दैट मीन्स यहाँ पे भी लास्ट शेल एम थी और यहाँ पे भी लास्ट शेल एम थी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज while moving in a period from right to left, but the number of shells will remain same, okay, क्लियर है यहाँ तक। बट when we move in a group, जब हम ग्रुप में बात करते हैं, लाइक सपोज करो मैंने यहाँ पे लिथियम की बात की, लिथियम आपका सोडियम से ऊपर आता है, सो एंड इट हैज़ एन एटॉमिक नंबर एज 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2 and 1, सो यहाँ पे एल शेल ही लास्ट है आपकी। जब एल शेल लास्ट है तो व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पे एम शेल एग्जिस्ट नहीं करती, तो दैट मीन्स लिथियम से जब सोडियम पे जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, ओके। सो व्हाट डज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सजेस्ट, दैट व्हाइल मूविंग इन अ पीरियड the number of shells remains the same for the same element, for the same number of elements present in the same period, but the number of electrons will increase. But while moving down a group, जब आप ऊपर से नीचे मूव करेंगे then आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करेंगे, ओके। नॉट जस्ट सी, मैं आपको पीरियड इस टेबल में समझाती हूँ, जस्ट अ मिनट। सी, ये आपका सेकेंड पीरियड था एंड ये आपका थर्ड पीरियड था। जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी देखी तो यहाँ पे लास्ट शेल एल थी और यहाँ पे लास्ट शेल क्या थी, एम थी, फाइन। तो एक शेल इंक्रीज करेगी, तो यही ये कहता है कि डाउन द ग्रुप ऐसे मूव करने पे आपका नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती है, दिस इज मूविंग डाउन द ग्रुप। बट व्हेन यू आर मूविंग लाइक दिस, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ पीरियड, जब आप ऐसे मूव करते हैं, मूविंग इन अ पीरियड कहलाता है ये, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इट मीन्स नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे एम थी और मैग्नीशियम में भी एम थी, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, ओके। तो यही यहाँ पे कहते हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 8, ऐसे इंक्रीज करेंगे 1 to 8 में, बट द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम। लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम में पीरियड नंबर 3 था, एंड जब पीरियड नंबर 3 था तो वहाँ पे क्या था, एम शेल लास्ट एग्जिस्ट थी, बट सोडियम में 11 में एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, जबकि मैग्नीशियम में 1 एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, फाइन। सेम नेक्स्ट वी हैव ग्रुप्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो क्या कहता है कि ग्रुप 1 to 18 एग्जिस्ट करेंगे एंड वो हम वर्टिकली मूव करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। ग्रुप 1, this one, this is your group 1, this is your group 1, this is your group 2. Group 1 is known as alkali metals, group 2 is known as alkali earth metals, then group 13, 14, 15, 16, 17, 18, so their names are. Group 18 are known as noble gases because their outermost shell is completely filled, okay. Now see, group 15 are known as pincogens, 16 is chalcogens, 17 is हेलोजन्स बिकॉज वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ओके। एंड 18 जिसमें कोई भी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वहाँ की आउटरमोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होती है। ना अब इसी के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जो कहता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 3 पार्ट्स है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मीन्स उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, वो बॉन्ड्स बनाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके, लाइक अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ये चीज़। नाउ ऑक्साइड्स जब वो बनाएंगे तो वो ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन गेन करके
बॉन्डिंग करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे एंड देन गेनिंग से क्या होगा, उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्लियर है। एंड यहाँ पे जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो एसिडिक इन नेचर होंगे। मेटेलॉइड्स आपका ऐसे मेटल्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स लाइक बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेरिलियम। यू कैन सी ओवर हेयर, सी this one, these are your non-metals, fine. This is your noble gases. Now this is your germanium, arsenic, these are your metalloids, beryllium, selenium, these are your non-metal, these are your metalloids, okay. दिस इज़ योर येलो वाला आपका एल्कली अर्थ में एल्कली मेटल्स हैं, ब्लू वाला आपका एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, दीज आर योर ट्रांजिशन मेटल्स जो बीच के मेटल्स हैं आपके। देन दिस इज़ योर नोबल गैस, यू कैन सी दीज आर योर नॉन मेटल्स। देन रेयर अर्थ मेटल्स शो कर रखे हैं आपको, एंड दीज आर द पुअर मेटल्स जो बिल्कुल भी प्रॉपर्टी जल्दी से शो नहीं करते हैं मेटल्स की। एंड देन यू हैव द नॉन मेटल्स हो गया, एंड दिस पुअर मेटल्स बेसिकली योर समवॉट सिमिलर टू मेटलॉइड्स, ओके। नाउ अब ट्रेंड क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अभी हमने बात की थी कि जब भी हम एक ग्रुप में मूव करते हैं सेम नंबर होता है और सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। लाइक लिथियम एंड सोडियम की बात की थी हमने यहाँ पे, सी हमने यहाँ पे लिथियम एंड सोडियम की बात की, इफ़ यू कैन सी नाउ लिथियम एंड सोडियम सेम ग्रुप में थे, दैट इज फर्स्ट ग्रुप में आ रहे थे आपके, एंड दोनों के ही एटॉमिक नंबर में, इन दोनों की वैलेंसी कितनी थी, सेम, दैट इज +1। बट अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो वहाँ पे वैलेंसीज चेंज हो जाती है। नाउ डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, अभी देखा था कि लिथियम में L शेल था लास्ट और सोडियम में M शेल था लास्ट, ओके। पीरियड के अंदर सेम नंबर ऑफ शेल्स रहते हैं, बट अलोंग द पीरियड आपका हमेशा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिट से इंक्रीज करता है, बट ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं होता, फाइन। वेरिएशन ऑफ वैलेंसीज आपने देखा। नाउ वैलेंसीज ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन 2 वेज, 2 वेज में ही करते हैं। पहले आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं 1 2 3 4 और देन उसको 8 में से माइनस करते हैं, फाइन। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर सेम ग्रुप में है तो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लास्ट में, दैट इज 1 2 4 5 ऐसे, एंड देयरफॉर दे हैव द सेम वैलेंस, लाइक लिथियम एंड सोडियम की बात की थी हमने। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है क्लास, एटॉमिक साइज में क्या फ़र्क आता है, दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट वी आर बेसिकली स्टडिंग ओवर हियर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो अब बेसिकली क्या होता है, जब भी हम डाउन द ग्रुप करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे एक शेल इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, जब एक शेल इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा, फाइन। बट जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियड में, तो वहाँ पे क्या होता है क्लास कि आपका शेल्स तो सेम ही है, बट उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, जिसके वजह से न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर चार्ज इफेक्ट बढ़ जाता है, वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचना चाहते हैं, जिससे आपके साइज जो होता है एटम का वो छोटा होता चला जाता है। सो एटॉमिक साइज और रेडिया इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। So along the period atomic radius decreases because the effective nuclear charge means nucleus और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो चार्ज लग रहा है वो उसको अंदर की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से उसका साइज डिक्रीज हो जाता है, ओके। डाउन द ग्रुप ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वहाँ पे एक शेल एक्स्ट्रा एडअप होती है जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास अट्रैक्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज होता है। So down the group atomic radius increases because new shells are added, hence the distance between the nucleus and the valence electrons or the electrons could increase. Now metallic property same, along the period metallic property decrease हो जाती है क्योंकि वहाँ पे valence electron lose करने की formation नहीं होती, but down the group वो increase कर जाती है, okay। Down the group as the distance between the nucleus and outermost electron increases, distance increase करेगा, जब distance increase करेगा तो nucleus और last वाले shell में अपना होल्डिंग पावर कम हो जाएगी। सेम अगर मैं बोलूँ कि हम एक क्लास में बैठे हैं सपोज करो, एंड टीचर स्टार्टिंग में बोर्ड के पास खड़ी है और लास्ट में कोई बच्चा खाना खा रहा है, क्यों खा पा रहा है, क्योंकि टीचर का इतना इम्पैक्ट नहीं जा पा रहा उस लास्ट वाले बच्चे तक, उस पर अपना इतना कनेक्शन नहीं बना पा रही जिससे वो उस बच्चे को
अपने वॉइस के थ्रू अट्रैक्ट कर सके ताकि वो कॉन्सेप्ट समझे, तो वो अपने अकॉर्डिंगली वर्क कराए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ बेंचेस इंक्रीज हो गए, फाइन। बट जो फर्स्ट सेकेंड रो में बच्चे बैठे हैं उनके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा है, टीचर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही है उनके ऊपर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ पे आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, ओके। एंड डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज कर जाते हैं। एंड वहाँ पे जब टीचर फर्स्ट बेंचेस पे कंसंट्रेट करे तो वहाँ पे क्या होता है क्लास, आपके एलिमेंट्स के साथ, मतलब स्टूडेंट के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा, तो वो कोई भी मिसबिहेव नहीं कर पाते, ठीक है। सो दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या हुआ क्लास, कि वहाँ पर आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज कर गई, बट जब नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ डेस्क्स इंक्रीज करे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ पे मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाती है। एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, न्यूक्लियर pull decreases. This increases the tendency of an atom to lose valence electrons, hence metallic character increases. Now non-metallic में obviously along the period non-metallic character increase करेगा and down the group decrease करेगा, clear? Now electronegativity क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर कितनी होती है, ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप गेनिंग तो होती नहीं, लूजिंग होती है, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती है, बट अक्रॉस द पीरियड, मतलब along the period वो increase करती है। Now so we have completed the chapter that is modern periodic table, that is properties and one. So that's all for today. I hope this content is clear to you, and if you have any doubt you can contact me. Thank you and have a nice day.